Good morning, student. Yesterday we started the chapter the how the state government work. कैसे काम करती है? Because in the class 6 we studied about the local level, and in class 7 we are going to study about the state level. And when we talk about the national level, yesterday I told you at national level we are having the parliament. The member of parliament are known as MPs. But at the state level, we are having state legislature. State legislature. इसमें भी two houses होती हैं. Two houses are there. Legislative assembly and legislative council. And the member of legislative assembly is known as CU. This we have done yesterday. Now, the things comes, how do we choose these MLAs? How do we elect? Through elections. In our country, elections are held after a regular interval of time, after every 5 years. Free and fair elections should be there. Election Commission is there to hold the elections, and in the coming year 2022 again we are having legislative assembly elections are there. When we are talking about government, it's a governing body that makes rules and that takes decision for on our behalf and get the things done for our welfare. We also talked about the functions of the government. Government काफी तरह के function करती है, protect the boundaries of the country, maintain friendly relations with the other country, provide you aid and assistance at the time of natural disaster, controlling the prices of natural commodities, जो है essential commodities, उनके prices को control करती है. So there are various works that are done by the government. और जब हमने पढ़ा था level की, तो सबसे ऊपर क्या है हमारा national level, ठीक है? But in class 7 we are going to study at the state level. Class 6 में हमने सारा local level पढ़ा था. We studied about the Panchayati Raj system. We studied about the municipal corporation, urban administration, urban livelihood, rural livelihood. ये हमने सब उसमें पढ़ा. Now, elections होते हैं. कल भी मैंने आपको एक छोटी सी activity करवाई थी class में. Again, just explaining you कि ये terms हैं क्या. So be attentive in the class. Yes, Ranjita, make sure that disease do not break out in the city. That is at the local level. ये local level की बात है जब हम municipal corporation के functions की बात करते हैं. So when we conducted the activity yesterday in the class, उस time पे भी हमने जब votes का देखा था कि एक को how many votes you got? Ankit? 13 and 13 or 14? 14 and Bhumish? अच्छा, only one vote difference is there. अब हमें ये देखना है कि जो गवर्नमेंट है ये फॉर्म कैसे होती है, how the government forms. अब जब भी हम अपने यहाँ पे स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे बात करते हैं, we always talk about ruling party and opposition party. अब गवर्नमेंट फॉर्म कैसे हो रही है, let me tell you. अगर स्टेट लेवल पे इलेक्शंस हो गए, if we are having elections at the state level, like in your book they have taken the example of Himachal Pradesh. They have taken the example of Himachal Pradesh, but side by side I am going to tell you about Punjab because we are living in Punjab. So एक बात हो जाती है, we are using the term ruling party, the one who forms the government. Ruling party, the one who forms the government. Opposition party. Opposition party. Whenever there are elections, if any political party gets the more than half number of seats, win the more than half number of seats, that party forms the government. Ruling party कौन बनेगी? Ruling party. अब देखो बेटा, there is Congress, there अगर
हम पंजाब की बात करें, वी आर हैविंग कांग्रेस, वी आर हैविंग बीजेपी, श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी एंड और जो भी और पार्टी जो है। जब भी इलेक्शंस होते हैं हम वोट कास्ट करते हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने बहुत सारे कैंडिडेट्स को हर जगह से वो इलेक्शंस लड़वाती है, ठीक है। तो जिस पार्टी के मैक्सिमम कैंडिडेट्स विन करते हैं, इट मींस उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आ जाती है। द वन हु गेट, और विन कौन करेगा? अगर दो कैंडिडेट्स है, द वन हु गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, दैट कैंडिडेट विल बी द विनर। जैसे हमने कल एक्टिविटी की, जिसको ज्यादा वोट मिली वो जीत गया। बट व्हाट अबाउट द पार्टी? Any political party that secure the maximum number of seats, especially more than half, मतलब उनको मेजोरिटी चाहिए। to become the ruling party there should be majority। मेजोरिटी मतलब मैक्सिमम सीट्स उनको मिलनी चाहिए। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, जैसे हमने कल पढ़ा था, हमें देखा कि एक को 13 वोट्स पड़ी, एक को 14, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। बट इफ इट इज मोर देन हाफ, हाफ से भी ज्यादा वोट पड़ जाती है, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है। एक हो गई सिंपल मेजोरिटी, मेजोरिटी जिसके आपने देखा जिसको ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले, दैट इज सिंपल। बट इफ अ कैंडिडेट सिक्योर मोर देन, मतलब जिस पार्टी को बहुत ज्यादा, मतलब हाफ से भी ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिल जाते हैं, दैट इज गेटिंग पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। In your books they have given the example of Himachal Pradesh। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा है कि there are 68 seats। लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स है? 68। It's about the result of elections in Himachal Pradesh in 2003। Is their latest update is also there? Okay, now let me show। Now, so in the new book, it's the result of assembly elections in Himachal Pradesh in 2017। 68। बेटा देखो, जो भी एरिया है, जो भी हमारा स्टेट है, दैट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से हम अपने इलेक्शन जो कैंडिडेट्स को इलेक्ट करवाते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, वी आर हैविंग 118 सीट, 118 टोटल जो हमारे यहाँ पे आती है। सो When we are required, अब यहाँ पे देखो जब इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितनी सीट्स मिली है? 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस 21, कम्युनिस्ट पार्टी 1, इंडिपेंडेंट 2। अब मोर देन हाफ, व्हाट इज द हाफ ऑफ 68? 34। व्हाट इज द हाफ ऑफ 68? 34। अगर आप देखो बीजेपी को मोर देन हाफ वोट्स मिली है, इसका मतलब बीजेपी में एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। Which party is going to form the government? BJP। Which party is going to form the government? BJP। तो उस टाइम पे क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, सेकंड हाईएस्ट वोट किसको मिले? कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या बन जाएगी? ऑपोजिशन पार्टी। कांग्रेस पार्टी एंड अदर्स विल बी द ऑपोजिशन पार्टी। हो सकता है कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे ट्राई टू ज्वाइन हैंड्स विद कांग्रेस और विद द बीजेपी, पर जो सेकंड हाईएस्ट किसको गए वोट? किसको गए? कांग्रेस को। तो जो रूलिंग पार्टी बनेगी वो किसकी बनी उस टाइम पे? बीजेपी की। ऑपोजिशन किसकी बने वहां पे? कांग्रेस। और आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, मोर देन हाफ नंबर ऑफ सीट, तो वहां पे किसको मिली है? बीजेपी। 68 का हाफ कितना हो गया आपका? 34, और बीजेपी को कितनी मिली? 44। मोर देन हाफ है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज देयर। So who is going to form the government? BJP। After winning the number of seats, now the task comes, who will become the CM? तो वो जो जितने भी MLA जो बने होते हैं, वो अपने में से एक लीडर को चुनते हैं, ठीक है, कि हमारे में से ये लीडर है हमारी पार्टी का, that will become the chief minister। That will become the chief minister, ठीक है। उसी तरह अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को जो जीत जाती है, वो फिर अपने लीडर को क्या एज्यूम कर, वो क्या बना देते हैं? प्राइम मिनिस्टर। क्या बन जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट just see, have a look on page number 32।
Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. अब जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो भी हमारे, जैसे हम पंजाब की बात करें तो उसको हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देंगे. आपके सामने यहाँ पे वो हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया गया. मैप इज देयर. ठीक है. इंडिया एज अ होल, वहां पे कौन सी गवर्नमेंट है? नेशनल लेवल. नेशनल लेवल कहाँ पे पार्लियामेंट कहाँ पे है हमारी? न्यू दिल्ली. ठीक है. पर हर एक स्टेट की अपनी अपनी असेंबली है, दैट इज इन द स्टेट कैपिटल. तो यहाँ पे जो है कि जो इंडिया है, दैट इन एवरी स्टेट has a legislative assembly and each state is divided into different areas or constituencies. अब यहाँ पे आपको एग्जांपल किसका दिया था? हिमाचल प्रदेश का. Now, after winning the elections, these MLAs choose their leader as CM. Because we are talking about the state government, तो वो अपने में से लीडर को क्या बना देंगे? CM, Chief Minister. ठीक है. Now, how do people who are MLAs become ministers or chief ministers? अभी तो हमने इलेक्शन करके उनको वोट डाला है. वोट डाल के वो जीत के क्या बन गई है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. हाउ दे बिकम मिनिस्टर? क्योंकि सभी एमएलएस मिनिस्टर्स नहीं बनते और चीफ मिनिस्टर भी एक ही बनता है. ठीक है. तो हाउ डू पीपल हु आर एमएलएस दे बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर? कैसे बनते हैं? अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half number of constituencies in a state can be said to be in majority. जिस political party को maximum number of seats मिलती है, more than half number of seats मिलती हैं, that party is to be said in majority. उसका majority power उसके पास आ गई है. ठीक है. Now the political party that has majority is called the ruling party. जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है, that is known as political party. Majority means the party that won maximum number of seats, more than half number of seats. तो उसको क्या बना देंगे? ruling party. Ruling party means that party is going to form the government. CM उनकी पार्टी में से होगा. ठीक है. Now, and all other members are called the opposition. जैसे अब हमने हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में पढ़ा कि बीजेपी को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिली, मोर देन हाफ नंबर ऑफ सीट, तो रूलिंग पार्टी किसकी बन गई? बीजेपी. और ऑपोजिशन पार्टी में बाकी जो पार्टीज रहेगी वो किसमें आ गई है? ऑपोजिशन पार्टी. ऑपोजिशन पार्टी इज एक्ट लाइक अ वॉच डॉग. वो हर एक जो रूलिंग पार्टी के हर वर्क पे बहुत माइन्यूटली आई रखती है. रूलिंग पार्टी क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, आर दे मेकिंग पॉलिसी इन द फेवर ऑफ पीपल और नॉट. तो ये सारा ध्यान, मतलब जो भी हमारे बिहाफ पे जो क्वेश्चनिंग करनी होती है, दैट इज डन बाय ऑपोजिशन. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी. 68 एरियाज में उनको बांटा गया है. ठीक है. और उसमें से जो मैक्सिमम सीट्स है, दैट वर वन बाय द बीजेपी. तो बीजेपी बिकम द रूलिंग पार्टी. ठीक है. तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं की पार्टी में से बनेगा. ओके. अमंग दैट जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस है या अदर इंडिपेंडेंट पार्टीज है, दे एक्ट लाइक ऑपोजिशन. दे एक्ट लाइक ऑपोजिशन. इज द मीनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी इज क्लियर टू यू? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो. अब जो हमारा क्वेश्चन था कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनते कैसे हैं, अब आ गया. आफ्टर द इलेक्शंस द एमएलएस बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर. अपने में से अपना एक लीडर चुन लेते हैं और वो लीडर क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर. दैट विल बिकम द चीफ मिनिस्टर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर. अब चीफ मिनिस्टर बन गए, है ना. अब चीफ मिनिस्टर क्या करेगा अपने, क्योंकि देयर इज नॉट ओनली वन डिपार्टमेंट और वन मिनिस्ट्री, ही नीड्स द हेल्प ऑफ अदर मिनिस्टर्स आल्सो. तो फिर वो जो बाकी एमएलए में से है वो अपने किन को चुनेगा? अदर मिनिस्टर. पहले एमएलए दे विन द इलेक्शन. ठीक है. जिस पार्टी की मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स होंगी उसमें से वो अपना एक लीडर चुनेंगे. दैट लीडर विल बिकम द चीफ मिनिस्टर. अब वो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? अपने विनिंग एमएलए में से कुछ को क्या बना देगा? मिनिस्टर्स. क्या बना देगा? मिनिस्टर्स. सम डिपार्टमेंट्स विल बी गिवन टू देम. एजुकेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है मिनिस्ट्री, जो कुछ भी है ना, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो उस तरह से वो उनको दे देगा. नाउ
The chief minister then selects other people as ministers. After the election, it is the governor of the state who appoint the chief minister and other ministers. मेजोरिटी पार्टी ने मिलकर अपना लीडर चुन लिया, लीडर क्या बन गया? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ने बाकी सारे कैंडिडेट में से, एमएलए में से कुछ मिनिस्टर्स चुन लिए। अब गवर्नर का रोल आता है कि जो भी चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर को, उनको ओथ सेरेमनी होती है, शपथ लेते हैं, एंड देन दे फॉर्मली बिकम द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। एवरी एमएलए कैन नॉट बिकम द मिनिस्टर, चाहे वो मेजोरिटी पार्टी में से ऑपोजिशन में तो बन नहीं सकता। जो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनेंगे कहां से बनेंगे? मेजोरिटी पार्टी। पर एवरी एमएलए कैन नॉट बिकम द मिनिस्टर। इतने सारे मतलब उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग दे जस्ट सिलेक्ट द मिनिस्टर। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, हियर द रोल ऑफ गवर्नर कम्स। लास्ट में जो गवर्नर है, so who appoint the chief minister and other ministers? Who is the governor of Punjab? Who is the governor of Punjab? Shabash. Yes, beta. Mr. VP Singh Badnoor. Beta, update yourself. Civics is all about the current happening and you should know about your area and you should know about your state. अगर सबसे पहले तो आपको अपने सिटी के बारे में पता होना चाहिए, then you should know about your state also, then you should know about the nation also. Who is the MLA of our area? Yes, Sejal. सरदार बलविंदर सिंह धारवी। हमारे एरिया का एमपी कौन है? Who is the MP of our area? Mr. सोम प्रकाश। You should be updated। जैसे अब हमारे फगवाड़ा में who is the mayor? Mr. अरुण कुमार खोसला। एक लोकल लेवल आ गया, लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या कौन है? सरदार बलविंदर सिंह धारीवाल। और नेशनल लेवल पे जो एमपी है वो कौन है? सोम प्रकाश। अब पता लगा कि तीनों लेवल पे अलग अलग है हमारे, है ना? So be very much मतलब clear about that and there should not be any confusion. Again I am explaining the term majority. अब majority मतलब the party that won the maximum number of seats, and majority can be simple or absolute. सिंपल मेजोरिटी की मतलब जिसको ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिल गई, दैट इज फाइन, बट द पार्टी दैट वन विद द मोर देन हाफ नंबर ऑफ सीट, दैट इज एब्सोल्यूट। मतलब सिंपल मेजोरिटी में कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के साथ अगर आप हाथ मिला लो तो आप अपनी मतलब कोई भी मतलब जीत सकता है उस चीज में कि ऑपोजिशन को कम वोट मिले हैं। सिंपल मेजोरिटी में जैसे अब कल था, हो सकता है कि कल जैसे हमने अंकित और उसके केस में किया था भूमिश के, तो भूमिश हो सकता है किसी और फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ कर ले, है ना, ट्राई टू गेट मोर नंबर ऑफ वोट, ऐसा हो सकता है ना उस चीज में। पर जब एब्सोल्यूट बन जाती है मतलब मोर देन हाफ आपको मिल चुकी, एंड दैट पार्टी इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट पार्टी इज नोन एज रूलिंग पार्टी। अब ये दिमाग में कई बार आता है, sometimes parties did not get a sufficient number of votes. Sometimes what happens, जो ruling party है, maybe that is not a single party. किसी एक पार्टी को आप किसी को simple majority, absolute majority नहीं मिलती, तो what happens at that time they join hands with the other political parties which are having the same ideologies which their parties have. तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट बनती है दैट इज द कोलिशन गवर्नमेंट, दैट इज द कोलिशन गवर्नमेंट। वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी को ना तो सिंपल मेजोरिटी मिली ना तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली, ठीक है। सो दे आर नॉट एबल टू फ्रेम द गवर्नमेंट, फॉर्म द गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, दे ज्वाइन हैंड्स विद द अदर पॉलिटिकल पार्टीज दोज हु आर हैविंग द सेम आइडियोलॉजी। बीजेपी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाई, बीजेपी की जिस पार्टी के साथ आइडियोलॉजी मिलती है ना, उसके साथ, और जो कांग्रेस है तो कांग्रेस अपनी जो सेम आइडियाज और आइडियोलॉजीज वाली पार्टी है उनके साथ हाथ मिलाए। एट दैट टाइम जो
उस टाइम पे जो गवर्नमेंट बनती है उसे हम कहते हैं कोलिशन, दैट इज नोन एज कोलिशन। पेज नंबर 33, ब्लू लाइंस। At times, a ruling party may not be a single party, but a group of parties working together. This is called coalition. हमारे यहाँ पे जो coalition गवर्नमेंट है, जैसे एनडीए और यूपीए। एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए है यूनाइटेड पीपल्स अलायंस। अलायंस मतलब आपने 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैंड ज्वाइन किए, देन यू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है,